Lord God, we thank you, Lord Jesus, for this wonderful privilege that you have given us, Lord God. And I pray, Lord God, that help us open the eyes and ears of the understanding of the brothers, Lord God, and also touch our heart, Lord God, and touch my lips, Lord God, that I will just, Lord God, say what's in the mind of God, Lord God. I pray, Lord, just open again, Lord God, the window of heaven, Lord God. Bless us with all your knowledge and understanding. In Jesus' mighty name we pray. Amen. 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 Praise the Lord. So now we are in the part 3 of the seven seals, claiming his possession. और आज जो 7 मोहरें हैं उसका तीसरा हिस्सा है और जो उन्वान है वो है दावा जो उसने कब्जा किया है उसका दावा करना। Yeah, in part 1, we saw the scene in heaven, how the arrangement of the setup in heaven. तो पहला जो हिस्सा हमने किया था उसमें हमने सारे मंजर को देखा था कि आसमान पर क्या सेटअप है, क्या मंजर है। एक तख्त है, करूबी हैं, जानदार हैं। So we saw it, whatever we are doing here on earth is patterned in heaven. और उसके बाद फिर हमने देखा कि जो आसमान के ऊपर था, जो मंजर था वो जमीन के ऊपर भी वैसा ही है। Then the part 2, we saw the importance of the seventh seal. पार्ट 2 जो था उसके अंदर हमने इसकी अहमियत को देखा कि 7 मोहरों की अहमियत क्या है। See, the Seven Seals book, we say, like the prophet said, it says that is the abstract deed, meaning to say, that is where all the beginning come from. और उसके बाद फिर हमने देखा कि सब चीजों का आगाज किस तरह से हो रहा है। ये किताब क्या है? ये एक टाइटल डीड है, एब्स्ट्रैक्ट डीड है। And then it is like the mother title of the land, where all the small title came from. और फिर उसके बाद जो हमारे पास जो किताब मौजूद है, द टाइटल डीड ऑफ द अर्थ, No, title, mother जिसको कहा title of जा the land. जी, It is like, यस ब्रदर। do you have in Pakistan, here in the Philippines, if there is a big tract of land, we have a mother title. Then out of that mother title, when they cut the land, so all these little small land, the title of this small land came from that what we call the mother title. Right. I don't think so we have this kind of, but I'll explain to the brothers. So Okay. भाई कह रहे हैं जिस तरह से पाकिस्तान में कुछ सोसाइटीज होती हैं, तो पूरी सोसाइटी का एक मलकियत जिस तरह से होती है किसी के पास, तो आगे से फिर वो जब घर बांटे जाते हैं, प्लॉटिंग की जाती है, तो वो थोड़े थोड़ा हिस्सा जो है सबको दिया जाता है, वो मालिक बनते हैं उन चीजों का। See, so when you trace the history of this small title, it will always go back to the mother title. इसलिए फिर जब आप इसकी तारीख को देखें कि जो हिस्सा छोटा मौजूद है, उसका जो पीछे एक मेन हिस्सा है जिसको मदर टाइटल कहा जा रहा है, वो क्या है। Then, the Seven Seals book, it was also called the Deed of the Redemption, title Deed of Redemption. इसलिए 7 मोहरें जो हैं उनको मखलसी की दस्तावेज भी कहा जाता है। Then, it was also called, the prophet said, the title deed to the earth and to eternal life. और नबी ने कहा है कि ये दस्तावेज है, जमीन की मलकियत के कागजात भी हैं और अब्दी जिंदगी के भी। See, so if nobody can redeem it, meaning to say, the earth and the eternal life will be lost. और अगर तो कोई किसी के पास इस मलकियत को हासिल करने के लिए कोई शख्स ही मौजूद ना हो, तो फिर आप वो जो अब्दी जिंदगी है उसको खो देंगे। See, so that's how important the Seven Seals book is. इसलिए 7 मोहरों की जो किताब है उसकी बहुत ज्यादा अहमियत है। See,
if the seven seals book cannot be opened, meaning to say nobody can redeem it. अगर तो कोई 7 मोहरों की किताब को खोल ना सके, तो इसका मतलब है कि छुटकारा या मुखलसी भी किसी को मिल नहीं सकती। See, then everything, all our sacrifices, all our effort will be useless. और फिर हमारी सारी कुर्बानियाँ और हमारी सारी मेहनत जो है, उसका कुछ हासिल नहीं है। And then we saw it, see, in Revelation chapter 4 and chapter 5, they're asking, they're waiting that book to be redeemed. और फिर क्या है कि वो सब इस इंतज़ार में रहेंगे कि कब ये किताब जो है खुले और मुखलसी हो सके। And so the strong angel is asking, who can redeem it? इसलिए वो ज़ोरावर फरिश्ता, मज़बूत फरिश्ता कह रहा है कि कौन इस लायक है जो मुखलसी या छुटकारा हमारा करवा सकता है? Said, there is the Lion of the tribe of Judah, the Lamb of God. कि हाँ, यहूदा के कबीले का बब्बर है, जो खुदा का बर्रा है, वो इस लायक है जो इस किताब की मोहरों को खोल सकता है। Amen. See? So the prophet said, waiting for redemption claim, it's redemption. What is this book of redemption? This title deed, abstract deed. You say abstract, what does abstract means? Means it's search all the all way back to its beginning. और नबी कहते हैं कि जो मुखलसी का जो प्रोग्राम है, उसका दावा करने का हम इंतजार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यही मुखलसी है। व्हाई इज इट दिस बुक ऑफ रिडेम्पशन? क्यों इस किताब को मुखलसी की किताब कहा जा रहा है, जिसके ऊपर मोहरें लगी हैं? ये एक दस्तावेज है, मलकियत की किताब है। और खुलासा उसमें से अलग किया जाना कुछ चीज़ों का, वो खुलासा क्या है? वो इब्तदा से शुरू करके वो देखता है, सारी चीज़ों का खुलासा करता है कि कौन है जो उस मुखलसी के प्रोग्राम के अंदर है। Amen. See, so it will show us this seven seals book will show us how God will going to redeem the church, how God will redeem Israel, how God will redeem the whole earth. और इसी मुखलसी की किताब के ज़रिए से ही हम जान सकते हैं कि खुदा किस तरह से छुटकारा दिलवा रहा है। जो गैर अक़वाम में है, साथ कलीसियाई ज़मानों के अंदर से लोग निकल कर आ रहे हैं, बनी इस्राइल है और बाकी जो दुनिया के अंदर लोग मौजूद हैं। See? So the mystery of redemption of the church, see, it will be known once the seven seals is open. और कब हम इन भेदों से वाकिफ हो पाएंगे? जब ये जो मोहरों की किताब है, 7 मोहरों की, जब ये मोहरें खुलेंगी। That's why the prophet said, we have so many problems today with the doctrines. We have so many confusion because the seal is not yet open. Once the seal is open, then it will clear all this mystery. और नबी कहते हैं कि आज दुनिया के अंदर बहुत सारी तालीमात हैं, बहुत सी उलझन है, लोग परेशान हैं, समझ नहीं आ रही। वजह क्या है? क्योंकि ये मोहरों की किताब उनके ऊपर खुली नहीं है। जब See, ये मोहरों की किताब खुलेगी, फिर जाकर उन्हें समझ आ सकेगी। it will reveal to us the mystery of justification, the mystery of sanctification, the mystery of the baptism of the Holy Ghost. लेकिन जब ये किताब खुल गई तो उसने हमारे ऊपर खोला कि आज हम रास्तबाज कैसे ठहराए जाते हैं, हमारी तकदीस कैसे होती है, किस तरह से ये 7 मोहरों का मुकाशवा क्या है और नई पैदाइश क्या है। See, that's why it was called the book of redemption. इसलिए इस किताब को कहा जाता है मुखलसी की या छुटकारे की किताब। See, so it needs to be open. तो जरूर है कि ये किताब खोली जाए। Until it will open, see, we will not understand the mystery of redemption. और जब तक ये किताब खोली नहीं जाएगी, तब तक हम इस छुटकारे के भेद को समझ नहीं पाएंगे।
how God will going to save or redeem the church, how God will going to redeem Israel, and how God will redeem the whole nature, the whole world. तो खुदा किस तरह से इस पूरी दुनिया को छुटकारा दिलाएगा, फितरत को छुटकारा किस तरह से मिल पाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ इस किताब के जरिए से ही मुमकिन हो सकता है। See how it will redeem the church, Israel, and the earth. किस तरह से ये सब कुछ मखलसी मिलेगी कलीसिया को, इसराइल को और इस सारी फितरत को। See, and God needs the blood of the lamb to redeem. See, to redeem the book, to open the book. Brother Nestor, can you come again? Your voice cut off. See? And the book will be redeemed by the blood of the lamb. Once the book be redeemed, then the seven seals book will be opened. तो किस तरह से ये किताब खुल सकती है, छुटकारे की या मखलसी की किताब? ये बर्रा ही है जो इस किताब को खोल सकता है, और जब वो खोलेगा तो फिर जाकर हमारे सामने जो मखलसी का उसका प्रोग्राम है सामने आएगा। See, this seven seals book need to be redeemed first. तो ये जो 7 मोहरों की किताब है, इसका खोला जाना पहले सबसे ज्यादा जरूरी है। See, because if the seven seals book cannot be redeemed, then the whole creation was lost. क्योंकि अगर ये मोहरों की किताब नहीं खुलेगी तो सारी फितरत जो है वो खो जाएगी। See, because if this cannot be redeemed, this could not be opened. क्योंकि जब तक किताब खुलेगी नहीं, तब तक जो खुदा ने तख्लीक की है वो मखलसी पा नहीं सकती, जो अब उस खोई हुई हालत के अंदर है। Then the prophet said, and then the whole creation, everything was gone. If they could not find somebody, glory to God, if they could not find somebody that could meet that requirement, every human being in the whole world and creation was gone, and everything had fallen. The rights of the redemption, the rights of the eternal life, and the light, or all those rights had been forfeited, and there was nobody who could pay the price. क्योंकि जो इस किताब को, इसकी मोहरों को खोल सकता है और इसकी जो जितनी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सकता है, अगर वो ही ना खोले तो सारी नस्लें इंसानी जो इस जमीन के ऊपर मौजूद है, दुनिया के अंदर जो खुदा ने तख्लीक की है, सब कुछ गिरावट का शिकार हो जाएगा, सब कुछ खो जाएगा। इसलिए जो मखलसी का प्रोग्राम जिसके पास है, जो अब्दी जिंदगी दे सकता है, वही है और वही इस लायक है, क्योंकि उसने कीमत अदा की है इन सारी चीजों की। See, then in the book of Revelation chapter 5, 9a, it says, for thou wast slain and hast redeemed us to God by thy blood, out of every kindred and tongue, people, and nation. 7, and you see, I started in 9a, okay? Then verse 7, and he came and took the book out of the right hand of him that sat upon the throne. 8, and when he had taken the book, the 4 beasts and 24 elders fell down before the Lamb, having every one of them harps and golden vials full of odors, which are the prayers of the saints. 9b, see? And they sang a new song, saying, thou art worthy to take the book and to open the seals thereof. और मुकाशवा 5 बाब 9 आयत को हम पहले पढ़ेंगे, उसका आधा हिस्सा जो है लिखा है, और वो ये नया गीत। So you started with the 9a. Yes. Revelation 5. Okay, let me just go back. So 9 is started with this, and then half of that is here. So I arranged it. Yeah. Okay. That's fine. I'll read accordingly. और वो ये नया गीत गाने लगे कि तू ही इस किताब को लेने और उसकी मोहरें खोलने का लायक है, क्योंकि तूने ज़िबा होकर अपने खून से हर एक कबीला और अहले जुबान और उम्मत और कौम में से
खुदा के वास्ते लोगों को खरीद लिया। उसके बाद 7 और 8 आयत को पढ़ेंगे ताकि हम इसकी तरतीब को समझ सकें। उसने आकर तख्त पर बैठे हुए के दाहिने हाथ से उस किताब को ले लिया। जब उसने किताब ले ली तो वो चारों जानदार और 24 बुजुर्ग उस बर्रा के सामने गिर पड़े, और हर एक के हाथ में बरबत और ऊद से भरे हुए सोने के प्याले थे। ये मुकद्दसों की दुआएं हैं। और फिर लिखा है अगला हिस्सा, क्योंकि तूने ज़िबा होकर अपने खून से हर एक कबीला और अहले जुबान और उम्मत और कौम में से खुदा के वास्ते लोगों को खरीद लिया। आमीन। Amen. See? So, he came to redeem it. Then, he took the book. Then he came, he took the book. Then now, the book now can be opened. और वो आया और आकर उसने उस मखलिसी को, उस छुटकारे को लेकर आया। और किस तरह से उसने छुटकारा करवाया? अपना खून देकर, अपना खून की जो उसने कीमत दी है। उसके बाद आकर उसने उसके अगला जो काम किया, ही केम एंड टुक द बुक। फिर उसने आकर उस किताब को लिया। और आगे जाके अगला हिस्सा हम देखते हैं, जब किताब खुल गई तो फिर उन्होंने एक नया गीत गाया। See? So now, there it is. There is the Redeemer. Now, it was redeemed. We have the Redeemer. Christ has redeemed us now. We are now redeemed. But He has not claimed His possession yet. Now, you might different from that, but just hold a minute. Well, see? और मसीह आया और उसने आकर हमारा छुटकारा दिलवाया। और हमारे छुटकारे के बाद, जबकि हम छुटकारा पा चुके हैं, अभी छुटकारा पाने के बाद, जबकि हम आजाद हैं, लेकिन जो उसने आकर कब्जा लेना था हमारी जिंदगियों का, वो अभी तक नहीं हो सका। See, read all of this, brother. ओके, ओके। एंड ही कैनॉट अनटिल द टाइम अपॉइंटेड, और वो तब तक ये हो नहीं सकता, उस पूरे कब्जा को नहीं लेगा हमारी जिंदगियों के ऊपर, जब तक जो वक्त उसने तयन किया है वो आना जाए। एंड देन विल कम द रेजरेक्शन। उसके बाद फिर जी उठना होगा। एंड देन द अर्थ विल बी रीन्यूड अगेन। फिर लिखा है कि जैसे कि फिर नई जमीन होगी। एंड देन ही विल टेक पोजेशन, हिज पोजेशन विच ही गॉट व्हेन ही रिडीम्ड अस। फिर जाकर जब लिखा है कि नया आसमान और नई जमीन होगी, नई जमीन होने के बाद वो अपना कब्जा, यानी कि हमारी जिंदगियों के ऊपर पूरा अपना कब्जा ले रहा है, क्योंकि उसने पहले हमें छुटकारा दिया, कीमत अदा कर कर हमें खरीदा है। बट विल डू इट द अपॉइंटेड टाइम। ओ माय। तो जो उसने वक्त ठहराया हुआ है, उस वक्त में जाकर इस काम को वो करेगा। आमीन। See? Christ redeems back. He's already redeemed us, but hasn't took the possession yet. कि मसीह ने हमें छुटकारा दिलवाया है, लेकिन See? जबकि हम छुटकारा पा चुके हैं, लेकिन अभी तक उसने जो कब्जा है वो नहीं किया। आमीन। Amen. See, the opening of the seals book is to claim his possession. 7 मोहरों का खुलना जो है वो क्या है? वो जो उसकी मलकियत है, उस मलकियत के ऊपर कब्जा करना। See, first, the strong angel is asking who is worthy to redeem the book, to take the book. See, once the book is taken, now the opening of the seals, now he needs to claim what he has redeemed. और ये जो जोरावर फरिश्ता वो क्या कह रहा है कि कौन इस लायक है, कौन दावा कर सकता है जो इस किताब की मोहरों को खोलेगा? और वो ही है आ मौजूद होता है जो वो कहता है कि हाँ, वो छुटकारा उसने करवा लिया है। मखलसी जो सलीब के ऊपर उसने अपनी जान दी थी, खून अपना बहा दिया। आगे उसका अगला काम क्या है? इस किताब की मोहरों को खोलना। See, who will do the claiming and when will the claiming start? वो इस बात का दावा करेगा, और ये दावा शुरू कब होगा? See, now here in Revelation chapter 5, verse 5 to 7, he said, and one of the elders said unto me, weep not, behold, the Lion of the tribe of Judah, the root of David, had prevailed to open the book and to loose the 7 seals thereof. See, read all of this, brother. Yeah.
Yeah. मुकाशवा 5 बाब उसकी 5 आयत से हम शुरू करेंगे। Read chapter 5, verse 5 to 7. तब उन बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के कबीला का वो बब्बर जो दाऊद की असल है, उस किताब इस किताब और उसकी सातों मोहरों को खोलने के लिए गालिब आया। और मैंने उस तख्त और चारों जानदारों और उन बुजुर्गों के बीच में गोया ज़िबा किया हुआ एक बर्रा खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थीं। ये खुदा की सातों रूहें हैं जो तमाम रोए ज़मीन पर भेजी गई हैं। उसने आकर तख्त पर बैठे हुए के दाहिने हाथ से उस किताब को ले लिया। आमीन। See? In verse 5, he said, there is the one who overcome, who is worthy to open the book, to take the book. That is the Lion of the tribe of Judah, and to loose the seals. See? Then, when he looked at, John saw the Lamb. He said, as it been slain, see, before the foundation of the world, okay? And by his blood he came and took the book out of the right hand of the one that sat on the throne. और लिखा है कि कौन है वो यहूदा के कबीले का बब्बर है जो इस किताब की मोहरों को खोलने के लिए गालिब आया है। और लिखा है 7वीं आयत के अंदर फिर, एंड ही केम एंड टुक द बुक, फिर वो आता है और आया और उसने उस किताब को लिया, वो जो तख्त पर बैठा था उसके दाहिने हाथ से। See, here again, in Revelation chapter 5, verse 8 to 10, it says, when he had taken the book, the four beasts, the Lamb, we have already read it. See, he said in verse 9, he was slain and has redeemed us to God by thy blood, by his blood. See, and has made us unto our God kings and priests, and had okay, read it, brother. या तो हमने इन आयतों को पहले से पढ़ लिया है। पहली बात जो है वो कौन है जो इस किताब की मोहरों को खोलने के लिए गालिब आता है, वो बर्रा है। और बर्रा क्या है? वो बर्रा उसने अपनी जान दी, जो उसने अपना जान देकर हमारे मखलिसी उसने करवाई, हमारा छुटकारा करवाया। और 10वीं आयत के अंदर लिखा है, और उनको हमारे खुदा के लिए बादशाही और काहिन बना दिया, और वो जमीन पर बादशाही करते हैं। आमीन। Amen. See? Okay? Again, here in chapter, now I'm going to connect it, okay? Revelation 5, verse 8 and 9, then Revelation 5, verse 5. Okay, it says here, see, the Lamb was slain, redeemed us by his blood. The Lamb redeemed us. But in Revelation 5, verse 5, it says, the Lion of the tribe of Judah had prevailed to open and to loose the 7 seals. The Lion will claim. The Lamb redeemed, the Lion will claim. आमीन। सो 2 चीजें हैं जो मुकाशवा 5 बाब में 8 से 10 में हमने पढ़ी थी, कि वो बर्रा है जो आकर अपनी जान दे रहा है ताकि ये किताब खुल सके, और वो अपनी जान देता है। और मखलिसी हमें जो दिलवाने वाला है वो बर्रा है, खुदा का बर्रा, जो हमने मुकाशवा 5:9 के मुताबिक पढ़ा है। फिर उसके बाद आप मुकाशवा 5 बाब उसकी 5 से 7 आयत पढ़ें तो लिखा है कि कौन गालिब आया है जो इस किताब की मोहरों को खोल सकता है। तो वो लिखा है कि वो यहूदा के कबीले का बब्बर है जो दाऊद की असल है, वो प्रिवेल हुआ है, वो गालिब आया है ताकि इन किताब की मोहरों को खोल सके। सो मखलसी देने वाला बर्रा है, लेकिन किताब की मोहरों को खोलने वाला कौन है? वो शेर बब्बर है। आमीन। See? So here's the scene in heaven, okay? The strong angel is asking, who can take the book? Who can take the book? But the book need to be redeemed first. He said, the Lamb redeemed it. Now the Lamb took the book. See? But then when it come to opening the book, it said the Lion of the tribe of Judah prevailed to open and to loose the 7 seals. आमीन। 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 सो इस बात को आप समझिएगा कि जो किताब को आकर जो तख्त पर बैठा है उसके हाथ से जो ले रहा है वो एक बर्रा ही है, क्योंकि बर्रे ने ही जान दी है और मखलसी हमें हमारा छुटकारा करवाया है। लेकिन उसके बाद जो है ना, उसकी खिदमत तब्दील हो रही है। जब वो किताब को ले लेता है, जब मोहरों को खोलने की बारी आती है, तो वहां पर जो है वो शेर बब्बर है, वो इस बात का दावा कर रहा है कि वो इस मोहरों को खोल सकता है। See?
So the seven seals, who opened the seven seals? The Lion of the tribe of Judah, not Brother Branham. The seven seals was opened where? In heaven. तो ये मोहरों को खोलने के लिए गालिब कौन आए हैं भाई ब्रैनम? नहीं, बल्कि ये यहूदा के कबीले का बब्बर है। और मोहरें कहां पर खुल रही हैं? आसमान में। See? So now here, Revelation chapter 5 verse 5, then Revelation 10 verse 1 to 7. Okay, here, this is in heaven. The Lion of the tribe of Judah, see, prevailed to open and to loose. Open the seven seals. When he opened the seven seals, Revelation 10, he says, and I saw mighty angel. Now, he's come down from heaven. He's coming from heaven, come down from heaven, clothed with a cloud and rainbow upon his head. See, and his face were like the sun, and his feet as a pillar of fire. And he had in his hand the little book open, and set his feet upon the sea and upon the earth. Then when he cried with a loud voice, he says, as like a lion roared. And he cried, seven thunder uttered their voices. And when seven thunder uttered their voices, he says, John was supposed to write, and I heard the voice from heaven saying to me, seal up those things which the seven thunders utter, and write them not. और ये किताब की मोहरें खुल कहां पर रही हैं? ये आसमान में खुल रही हैं। और ये यहूदा के कबीले का बब्बर है जो गालिब आया है इस किताब की मोहरों को खोलने के। मोहरें आसमान पर खुल गईं, और यही फरिश्ता जो है अब नीचे उतर कर आ रहा है। जो माइटी एंजल है, जोरावर फरिश्ता, नीचे आ रहा है किताब को लेकर। और जब वो नीचे आता है तो वो क्या है? लिखा है मुकाशवा 10 बाब के अंदर, फिर मैंने एक जोरावर फरिश्ता को बादल ओढ़े हुए आसमान से उतरते देखा। उसके सर पर धनक थी और उसका चेहरा आफताब की माने था, और उसके पांव आग के सतूनों के माने, और उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई किताब थी। उसने अपना दाहिना पांव तो समुद्र पर रखा और बायां खुश्की पर। और आगे लिखा, ऐसी बड़ी आवाज से चिल्लाया जैसे बब्बर धाड़ता है। जब वो चिल्लाया तो गर्ज की 7 आवाजें सुनाई दी। और जब गर्ज की 7 आवाजें सुनाई दे चुकी तो मैंने लिखने का इरादा किया, और आसमान पर से ये आवाज आती सुनी, जो बातें गर्ज की इन 7 आवाजों से सुनी हैं उनको पोशीदा रख और तहरीर ना कर। Amen. See? So John heard the seven thunders, the voices of the seven thunder. He was about to write it. Then, see, the voice from heaven said, don't write it. Don't write them not. See? And the angel which I saw upon the sea and upon the earth lifted his hand to heaven, and swear by him that liveth forever and ever, who created heaven and the things that are, and the earth and the things that therein, and the sea and the things which are therein, that there should time be no longer. See, but in the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound, the mystery of God should be finished, as he declared to his servants the prophet. Amen. 5वीं ऐसे, और जिस फरिश्ता को मैंने समुद्र और खुशकी पर खड़े देखा था, उसने अपना दाहिना हाथ आसमान की तरफ उठाया, जो अब्दुल्लाबाद जिंदा रहेगा, और जिसने आसमान और उसके अंदर की चीजें, और जमीन और उसके ऊपर की चीजें, और समुद्र और उसके अंदर की चीजें पैदा की हैं, उसकी कसम खाकर कहा कि अब और देर ना होगी, बल्कि 7वें फरिश्ता की आवाज देने के जमाना में जब वो नरसिंगा फूंकने को होगा, तो खुदा का पोशीदा मतलब उस खुशखबरी के मुआफिक जो उसने अपने बंदों नबियों को दी थी पूरा होगा। Amen. Okay? So now we simplified it. See? So John heard a cry with a loud voice. See? As a lion roared. And when he cried, 7 thunder uttered their voices. So John heard the voice, and when the 7 thunder had uttered their voices, I was about to write. And I heard the voice from heaven saying to me, seal up those things the 7 thunder uttered, and write them not. See? Until when these 7 thunders will be revealed. He says, but in the days of the voice of the 7th angel, when he shall begin to sound, the mystery of God should be revealed, should be finished. और यूहन्ना जो है वो शेर के धाड़ने की आवाज को सुन रहा है, और जब वो सुनता है तो गर्ज की 7 आवाजें पैदा होती हैं, और यूहन्ना को वहां पर मना किया जा रहा है कि तू इस किताब
जो तू कुछ सुन रहा है इसको मोहर बंद कर दे, इनको ना लिख, जो तूने गज की सातों आवाज़ों में से सुना है। फिर उसके बाद 7वीं आयत में लिखा है और 7वें फरिश्ता की आवाज़ देने 7वीं आयत के अंदर लिखा है, बल्कि 7वें फरिश्ता की आवाज़ देने के ज़माना में, जब वो नरसिंगा फूँकने को होगा, तो खुदा का पोशीदा मतलब उस खुशखबरी के मुवाफ़िक ज़ाहिर होगा। आमीन। See? Now, okay, so Daniel chapter 12, verse 7, there is no book. Daniel दानियल never saw the 12 book. बाब उसकी 7 दानियल 12:7 के मुताबिक दानियल किसी भी किताब को तो नहीं देख रहा। But then, see, now here in Revelation chapter 5, we saw the book. See, but it was in heaven, it was closed. See, and they are looking for a redeemer. And then we have the redeemer, the lamb. तो दानियल तो किताब को नहीं देखा, लेकिन मुकाशवा 5 में हम आते हैं तो आसमान पर हमें किताब नजर आती है, लेकिन वो किताब बंद है। और उस किताब को खोलने के लिए एक चाहिए था कि जो छुटकारा दिलवा सके, जो मखलसी दिलवा सके, और वो कौन था? एक बर्रा था। See, so here in heaven, see, we saw the book was opened by the Lion of the tribe of Judah. तो फिर हमने देखा कि आसमान पर जो किताब को खोल रहा है वो यहूदा के कबीले का बबर है, वही सिर्फ खोल सका इस किताब की मोहरों को। See, in Revelation 5, they are looking for the redeemer. मुकाशवा 5 के मुताबिक वो एक मखलसी दिलवाने वाले को ढूंढ रहे हैं। Then, when the redeemer appeared, the lamb, now he took the book and then the book was opened in heaven. और फिर जब मखलसी देने वाला आ गया, बर्रे ने किताब को लिया और फिर वहां पर आसमान पर ये किताब खोली जा रही है। Then from heaven, it come down to the earth. Revelation 10. और फिर यही किताब आसमान पर खुली और नीचे जमीन पर आ रही है, मुकाशवा 10 बाब के मुताबिक। See? So Revelation 5, we have the redeemer. मुकाशवा 5 के अंदर हमें छुटकारा देने वाला नजर आ रहा है। See? Now in Revelation 10, see? Now from heaven, he came down. Now the book is open. अब वो आसमान से नीचे आया, लेकिन जब किताब नीचे आ रहा है तो किताब खुली है। Okay? When these things happen, see Revelation 10, see? When the mystery clouds appear, 1963. और ये बातें कब हो रही हैं? जब वो आसमान से नीचे आ रहा है। ये आकर हमारे जमाना के अंदर पूरा हुआ 1963 के अंदर, जब वो माइटी एंजल जो है उतर कर आया उस बादल में। See? So the claiming start when the seals starting to be open. तो ये क्लेमिंग, दावा करना जो है, ये कब शुरू हो रहा है? जब मोहरें खुलना शुरू हो गई। See? The book is now open. Now he's claiming it. Now he is the lion. अब किताब खुली है और खुली किताब के जरिए से अब वो दावा कर रहा है, और किस तरह से कर रहा है? बतौर शेर बबर। See? From closed book, now it's an open book. As a redeemer lamb, now he's claiming it. From lamb, now he is a lion. और पहले किताब क्या थी? आसमान पर थी, नीचे जमीन पर आई, बंद थी, वो नीचे आई किताब खुले रूप में, किताब खुली है। फिर उसके बाद जो मखलसी जिसने करवाई है, जो खुदावंद यीशु मसीह है, आकर फिर वो क्लेम करता है, इस चीज का दावा कर रहा है। तो पहले क्या है? बतौर बर्रा वो इस किताब को लेता है, लेकिन जब खोल रहा है तो बतौर शेर बबर। Okay, so like the prophet said, we might have a difference with it. Just gave me a minute. Okay? और मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा। इस तरह से नबी ने भी कहा है कि हमारा जो ख्याल है वो फर्क हो सकता है, लेकिन मैं इस बात को आगे जाके खोलता हूँ। Christ already redeemed us, but he need to claim his possession. मसीह ने तो हमें पहले से ही मखलसी दे दी है, लेकिन अब उसने अपना मलकियत, जो हम उसकी मलकियत है, हमारा उसने कब्जा लेने के लिए आना है। See? That's why footprints means possession. क्योंकि इसलिए जो पाँव के निशान होते हैं
उनका मतलब क्या होता है कि जहां आपका पाँव का तलवा लग गया है, वो जमीन, वो जगह, वो उसकी मलकियत आपकी हो गई है। See, one of his foot on the sea, one of his foot is in the land. See, now he is trying to claim everything. क्योंकि जब वो फरिश्ता 10 बार में नीचे उतर कर आए, एक पाँव उसका खुशकी के ऊपर है और दूसरा समुंदर पर है। तो जहां Okay, पाँव टिक रहे हैं उसके, उसका मतलब क्या है कि वो अपना पोजेशन ले रहा है। okay. Now, John, he said, then the seven thunders out uttered the strange voices, and John was going to write. It was, John knew what it was, but he didn't write it because he was forbidden to write it. That's absolutely a mystery. तो यूहन्ना जो है 7 गर्जों की आवाज़ों को सुनता है और जो कुछ उन गर्जों के अंदर मौजूद है उसको वो लिखना चाह रहा है, लेकिन उसको मना किया जाता है कि इन गर्जों में से जो आवाज़ों से तू सुन रहा है, इनको तू ना लिख, क्योंकि ये एक See? भेद है। Okay? हुँ, It says, Daniel heard seven thunders. They uttered their voices. Daniel grabbed his pen and started to write, and the angel said, don't you write it. Amen. See? Are you ready? Let's get into the just. So he said, don't you write it. John saw the same thing. See? And it had already been written outside of the Bible, okay? The seven seals, on the back of the book, and no one could open those when them voices, okay? Just read it, So, brother. या तो दानियल जो है वो भी इन 7 गर्जों की आवाज़ों को सुनता है और गर्जों को पेन पकड़ता है और वो लिखना शुरू करता है कि वो लिखें। लेकिन फरिश्ता उसको कहता है दानियल को कि दानियल तू इन बातों को ना लिख। सो भाई बहन कह रहे हैं, आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं? लेट्स गेट इनटू जस्ट फॉर अबाउट नेक्स्ट 5 मिनट्स। अगले 5 मिनट मैं इसके ऊपर और बात करूंगा। डोंट यू राइट इट, जॉन सा द सेम थिंग। सो इसको लिखना जो दानियल देख रहा है, दानियल ने भी लिखने की कोशिश की, इसी तरह से यूहन्ना मुकाशफा की किताब के अंदर लिखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको मना किया जा रहा है। इट हैड ऑलरेडी बीन रिटन आउटसाइड ऑफ द बाइबल, क्योंकि ये बाइबल के बाहर जो है लिखी गई है, क्योंकि वो जो 7 मोहरें हैं वो किताब के बाहर मौजूद हैं। आमीन। Okay? So now, Daniel saw it. John saw it. See? John was commissioned to write what he saw, not what he heard. यूहन्ना को हुक्म दिया गया कि जो वो लिख जो कुछ मैं तुझे दिखा रहा हूं, ये नहीं कि जो कुछ तू सुन रहा है। See? The Bible is very clear. It says, write the things which thou hast seen, the things which are and shall be and hereafter. वंडरफुल ब्रदर। सो यूहन्ना को वो फरिश्ता कह रहा है कि जो कुछ तुझे मैं दिखा रहा हूं उनको लिख, वो नहीं कि जो कुछ तू सुन रहा है उसको तूने लिखना है। जो देख रहा है, ये बाइबल बयान करती है, मुकाशफा पहला बाब उसकी 19 आयत के मुताबिक। See? John heard what the lion said. He was about to write it. But then the voice from heaven said, don't write it, because you are not commissioned to write what you heard, but you are only commissioned to write what you saw. प्रेज गॉड, वंडरफुल ब्रदर। तो यूहन्ना को सिर्फ यही कहा जा रहा है कि जो कुछ मैं तुझे दिखा रहा हूं वो तूने लिखना है। ये नहीं कि जो कुछ तू सुन रहा है कि बर्रा वहां पर बोल रहा है, शेर बब्बर के धाड़ने की आवाज को तू सुन रहा है, उन चीजों को तूने नहीं लिखना है जो सुन रहा है। ये मैं तुझे हुक्म नहीं दे रहा। तुझे जो हुक्म दिया गया वो सिर्फ ये है कि जो कुछ तुझे मैं मंजर दिखा रहा हूं उसको लिखता जा। See? So John write what John then it was shown to him in symbol. See what he heard. और Now God showed it to him in symbol, in the symbol of the white horse, red horse, dark horse, pale horse. It was written now in symbol. ये सिर्फ और सिर्फ सिंबल या निशानात के अंदर, अलामात के अंदर यूहन्ना को बताया गया कि जो कुछ तुझे मैं दिखा रहा हूं कि एक लाल घोड़ा है, एक जर्द घोड़ा है, एक काला घोड़ा है, एक सफेद घोड़ा है। ये जो तुझे मैं दिखा रहा हूं सिर्फ इन अलामात को ही तू लिख।
Then, how long, Lord? How long this symbol will be revealed? But in the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound, the symbol of this revelation of the white horse, red horse, pale horse, dark horse will be revealed. और ये कब जाकर ये सिंबल्स जो हैं, ये अलामात ज़ाहिर होंगे, कितनी देर और लगेगी? और फिर लिखा है कि सातवें फरिश्ता की आवाज़ देने के ज़माना में, उस वक़्त जाकर ये जितनी अलामात हैं, उस ज़माना के अंदर, उस वक़्त के अंदर ये जाकर सारी बातें खुलेंगी। See? So here's the scripture. See? Revelation 1 verse 11, Revelation 1 verse 19, it's only say, write a book what thou see, write the things which thou hast seen. See? When the seal is open, see, it says here, and I saw the Lamb open the seven seals, and it was the noise of the thunder, and one of the four beasts say, come and see. Then he saw the white horse. The second seals were open. He said, the beast says, come and see. Then he saw the red horse. और देखिए मुकाशवा 1:11 के मुताबिक वो कहता है कि जो कुछ तू देखता है उसको किताब में लिख। सो देखने की बात हो रही है, जो कुछ तू देख रहा है। फिर 19 आयत में भी वो यही बात कर रहा है, बस जो बातें तूने देखी और जो हैं और जो उनके बाद होने वाली, उन सब को लिख ले। इसी तरह से मुकाशवा 6 बाब उसकी पहली आयत में अगर हम देखें तो वहां पर भी यही बात लिखी है। फिर मैंने देखा कि बर्रा ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला, और इसी तरह से तीसरी आयत, और जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे जानदार को ये कहते सुना। और See? 6 बाब के अंदर वो कह रहा है कि कम एंड सी, कि अब आकर तो इन बातों को देख। यस ब्रदर। See? He heard the thunder. Then the beast. See, one of the four beasts say, come and see. Now this thunder was shown in symbol form, in the symbol of the white horse. और मुकाशवा 6:1 के मुताबिक लिखे, उन चारों जानदारों में से एक की गर्ज की सी ये आवाज सुनी। अब सुन यूहन्ना गर्ज ही रहा है, वो सुन रहा है इस गर्ज को, लेकिन उसको कहा जा रहा है कि आ और इसको देख, इसको देख देख। ये नहीं कि वो ये सिंबल फॉर्म के अंदर ही थी, ये अलामात ही थी एक। Then another thunder in the second seal. See? Then it was again shown to him, come and see, in the symbol form of the red horse. और उसको जब दूसरी मोहर खुलती है, फिर उस वक्त भी यही कह रहा है कि आ और इसको देख। एक गर्ज होती है, और वो क्या आता है, फिर लाल घोड़ा आता है। उसको सिर्फ यही कहा जा रहा है कि इसको तू लिख। Okay? So now, and when the seven seals completely are broken, see, the time of redemption is over because the Lamb left, see, the intercession post to walk out, one to take his claim. और जब 7 मोहरें मुकम्मल तौर पर टूट गई हैं, खुल गई हैं, और उसके बाद फिर क्या है, जब मोहरों के खुलने के बाद मखलसी का प्रोग्राम खत्म। बिकॉज द लैम्ब लेफ्ट इंटरसेशन पोस्ट टू वॉक आउट, क्योंकि जो बर्रा जो हमारा शिफायती था अब आगे बढ़ता है, वो चल पड़ता है, ताकि बर्रा शिफायती के काम के बाद आगे उसका काम है दावा करना। See? So we are not being purchased, we are being redeemed. Okay? हम ये नहीं कि हमारी कीमत दे के हमारा छुटकारा हुआ है, हमारी मखलसी हुई है। उसने कीमत अदा करके खून अपना दे के हमें बचा लिया है। Okay? Redemption is very personal. But when you're purchased, that is general for everybody. जो कीमत अदा करना होता है वो तो सबके लिए है, वो उसमें सब लोग शामिल होते हैं। लेकिन ये जो रिडेम्पशन है, छुटकारा या मखलसी जो है, ये बहुत ही एक जाती है, पर्सनल है, ये चीज है, ये हर एक के लिए नहीं है। Okay? It is like if I have this item, I go to the pawn shop and pawn it. It's very personal. See, nobody can purchase it. See, I am the only one that can redeem it. और जिस तरह से ये मेरे पास हाथ में एक डिवाइस है, मैं इसको लेके ये किसी मैं दुकान से कीमत अदा करके खरीदता हूँ, तो जब मैं खरीद लेता हूँ तो ये मेरी अपनी जाती हो जाती है, जिसके इसके ऊपर जो है ये मेरी पर्सनल ये बन जाती है।
So redemption is personal, okay? But purchasing or buying, you can buy many of these, but this is has a sentimental value, okay? Let's put my ring, okay? See, this is definitely very has a sentimental value because this is my wedding ring. See, when I pawn it, see, nobody can redeem it because that is not their property. This is my property. So I am the only one that can redeem it. But I can buy many rings, okay? But this is very personal. दैट्स राइट। जिस तरह से मेरी ये अंगूठी है मेरे हाथ के अंदर, ये मेरी शादी की अंगूठी है। सो अंगूठियां तो आपको बहुत सारी मिल जाएंगी दुकान से, आप कीमत अदा करके खरीद सकते हैं, लेकिन ये मेरे लिए ये इसकी वैल्यू जो है, इसकी कदर बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये मेरी जात के साथ इसका ताल्लुक है, जो मेरा रिश्ता है उसके साथ इसका ताल्लुक है, और इसका छुटकारा इस अंगूठी का सिर्फ मैं ही करवा सकता हूं और नहीं कोई करवा सकता। See? So now, see, Right. once after he redeemed the bride by his blood, by his blood, now he is coming to take his bride. He's claiming them. और जब वो अपनी दुल्हन को बचा लेता है, उसका छुटकारा हो जाता है, फिर उसके बाद फिर वो जाकर आता है और See? उसको करता क्या है, छुटकारा करने के बाद वो दावा करने के लिए आता है। आमीन। See? Then he said, he was a mediator. He was a mediator between that. But when the real revelation happens on the seals, as they begin to break, the Lamb is coming forth from the sanctuary. It's according to the word. We read it last night. He came from the midst and took the book. So he's no more mediator because even they call him a lion. That's the king, and he's not a mediator then. और पहले तो वो हमारा दरमियानी था जब वो दावा कर लेता है, लेकिन उसके आगे जो एक हकीकी मुकाशफा में आगे बढ़ता है, जब ये मोहरें खुलती हैं, बर्रा आगे बढ़ता है उस सेंचुरी के अंदर, जो कि कलाम के मुताबिक है। हमने कल रात भी ये पढ़ा था, वी कम फ्रॉम आउट ऑफ द मिड्स ऑफ एंड टुक द बुक, क्योंकि बर्रा ही आगे आता है, इस किताब को लेता है। सो जब वो किताब को आके ले रहा है, अब उसके बाद सो ही इज नो मोर मेडिएटर बिकॉज इवन दे कॉल्ड हिम अ लायन। अब और वो जो है अब हमारा दरमियानी नहीं रहता, क्यों? क्योंकि अब उसकी पोजीशन जो है बदल गई है, अब वो शेर बबर बन गया है जब वो किताब की मोहरों को लेकर खोलता है। एंड दैट्स द किंग, क्योंकि वो क्या है, वो बादशाह है। एंड इज नॉट अ मीडिएटर देन। जब उसने किताब की मोहरों को लेकर खोल दिया है, तो अब वो हमारा दरमियानी नहीं रहा है, शिफायती नहीं रहा कि हमारी वो शिफायत कर सके। यस ब्रदर। See, in the seven church ages, he is the mediator between God and his people. See, but once the seal is open, the church is finished. Now, he's coming back again. He's coming again to claim his bride. See, he will not come again Amen. as a lamb. He's coming down here as a lion. आमीन। क्योंकि अब इन 7 कलीसिया ज़मानों में ज़रूर बाप के और हमारे दरमियान वो हमारा शिफायती था, वो एक बर्रा था, लेकिन अब क्या है, जो बर्रे का जो काम था वो पूरा हो चुका है। अब वो आ रहा है अपनी दुल्हन को क्लेम करने के लिए, उसकी मलकियत लेने के लिए, ताकि वो हमें यहाँ से लेकर जा सके। See, he is not coming again to redeem us. He already redeemed us. Redemption is over. Now he is coming to claim us. आमीन। क्योंकि मखलसी का काम जो है वो खत्म हो चुका है, क्योंकि हमारा छुटकारा हो चुका है पहले से ही। अब उसने सिर्फ और सिर्फ आना है हमें यहाँ से लेने के लिए, जो हम उसकी मलकियत है उसको क्लेम करने के लिए उसने आना है। See, he leaves the throne of to be an intercessor as a slain lamb, to be a lion, king, to bring the world to judgment who has rejected this message. He's not a mediator. Remember the Old Testament teaching now as we hurry.
when the blood went off the mercy seat, what was it? Judgment seat. And when the lamb slain walked forward from eternity out of the Father's throne and took his right, it was a judgment seat. Then he became not a lamb, but a lion, king. He calls for his queen to come stand by his side. Know ye not, saints shall judge the earth. तो वो अपने तख्त को छोड़ता है, he leaves the throne, वो तख्त को छोड़कर आगे बढ़ता है, और जो बर्रा जो पहले से ज़िबा हुआ है, उसके बाद जाके आगे उसकी खिदमत तब्दील होती है, टू बी अ किंग, टू बी अ लायन किंग, टू ब्रिंग द वर्ल्ड टू जजमेंट, ताकि बतौर शेर वो आगे बढ़ सके बतौर बादशाह, ताकि दुनिया की वो अदालत कर सके जिन्होंने इस मैसेज को रद्द किया है। अब वो और देर जो है हमारा दरमियानी नहीं रहा है, क्योंकि अगर आप पुराने अहदनामा की तालीम को देखें, उसमें से आप देखते हैं कि द ब्लड वेंट ऑफ अ मर्सी सीट, कि जब खून जो उस रहमगाह के ऊपर मौजूद है, जब वो खत्म हो गया, उसके बाद क्या है, उसके बाद फिर वही जो जगह है, वही जो मर्सी सीट थी, अब वो जजमेंट सीट बन जाती है। वही रहमगाह अब अदालत की रहमगाह है। एंड व्हेन द लैम्ब स्लेन वॉक्ड फॉरवर्ड फॉर इटर्निटी आउट ऑफ द फादर्स थ्रोन, और वही बर्रा जब बाप के तख्त से आगे निकलकर बढ़ता है, टुक हिज राइट, इट्स द जजमेंट सीट। अब वो और देर वहां पर तख्त पर मौजूद नहीं है, रहम के तख्त के ऊपर। अब क्या है, अदालत शुरू हो गई है। देन ही बिकम नॉट अ लैम्ब बट अ लायन किंग। अब उसकी खिदमत बदल गई, वो लैम्ब से एक लायन बन गया है, एक बादशाह, एक शेर बन गया है। और जो दूसरा पॉइंट है, he calls for his queen to come stand by his side। अब वो अपनी क्वीन जो उसकी मलिका है, उसको कह रहा है कि आ और मेरे साथ खड़ी हो। नो ye not the saints shall judge the earth। क्या तुम नहीं जानते कि जो मुकद्दसीन है वो इस दुनिया की अदालत करेंगे। Amen। Amen. See? So now he's coming down to claim his own. Then he's coming down to call his queen to stand by his side. Now, finally, to judge the earth. और वो कर क्या रहा है, वो आ रहा है नीचे ताकि अपनी क्वीन को, अपनी मलिका को कि मेरे साथ खड़ी हो, मेरे साथ उसके बादशाही कर सके। और तीसरा काम क्या है कि दुनिया की अदालत कर सके। See? So now, okay? Then you will ask me, Brother Nestor, is mercy over? तो आप मुझसे सवाल करेंगे कि भाई क्या जो रहम है अब वो खत्म हो चुका है? See? Because it says here, when the blood went off the mercy seat, what was it? Judgment. क्योंकि नबी यहाँ पर बयान कर रहे हैं कि जब खून ही उस रहमगाह जो है, जो मर्सी सीट है, उसके ऊपर खत्म ही हो गया, है ही नहीं मौजूद, तो फिर क्या है, वो फिर जजमेंट बन गई, वो अदालत की जगह बन गई है। And he is no longer a mediator. क्योंकि अब वो और देर जो है हमारा शिफायती या दरमियानी नहीं रहा। See? He is no longer an intercessor. He is now a lion, king. अब और हमारा वो शिफायती नहीं रहा है, बल्कि अब वो लैम्ब से एक लायन बन गया है। See? He leaves the throne. उसने तख्त को छोड़ा। See? So listen. Where is the throne of God now? अब देखें कि अब खुदा का जो तख्त है वो कहां पर है। गौर से And we सुने इस know बात को। the throne of God क्या आप is in जानते हैं our कि खुदा heart. का, अब खुदा का जो तख्त है वो तो हमारे अंदर मौजूद है, हमारे दिल जो है वो खुदा का तख्त है। See? Where is the judgment Amen. seat now? अब जो अदालत की जो जगह है, जो जजमेंट सीट है, वो कहां पर है? Judgment begin at the house of the Lord. अदालत तो खुदा के घर से ही शुरू हो रही है। Okay? See? Where is the Amen. blood of Christ now? अब यीशु का खून कहां पर है? You are Amen. the blood of Christ Amen. in the Spirit. आप हैं यीशु मसीह का खून, आप हैं रूहानी तौर पर यीशु का खून, आप हैं उसके तख्त, उसके रहने की जगह। यहाँ पर वो रहमगाह मौजूद है। Amen. Okay?
Then you will ask me, so no more mercy, Brother Nestor? तो आप कहेंगे कि भाई क्या और फिर रहम पीछे बाकी नहीं बचा? The scripture is very clear. Whomever sin you forgive, it will be forgiven. Whomever sin you retain, it will be retained. क्योंकि जो कलाम का हवाला है वो बहुत ही सादा और क्लियर है कि जिसके तुम गुनाह मुआफ करोगे उसके मुआफ होंगे, जिसके तुम गुनाह कायम रखोगे वो कायम रहेंगे। Okay? So before, there is only one Messiah. क्योंकि इससे पहले तो एक मसीह था, See? But today, the blood of Christ, there are now many. लेकिन अब यीशु के खून की वजह से बहुत से मसीह हैं। आमीन। See? God has no hands but your hands. God has no mouth but your mouth. God has no eyes but your eyes. अब खुदा के अपने हाथ नहीं हैं, आपके हाथ खुदा के हाथ हैं, आपकी आंखें खुदा की आंखें हैं, आपके कान खुदा के कान हैं। See? If somebody just give you a cold glass of water, they will be saved because you are the mercy of God on earth. आमीन। आज आप खुदा की रहमगाह हैं, और अगर आज कोई आपको को ठंडा प्याला पानी पिलाता है तो वो भी अपना अजर नहीं खोएगा, वो बचाया जाएगा। क्यों? किस वजह से? क्योंकि उसने आपकी खिदमत की है। See? आमीन। If the throne of God is in your heart, see, और अगर खुदा का तख्त आपके दिल में है, then we are the mercy of God. प्रेज गॉड। अगर खुदा तख्त आपके अंदर है तो फिर मर्सी रहम भी तो आपके अंदर ही है। See? आमीन। प्रेज गॉड। That's why once the bride knew what she is, not who she is, but what she is, see, then an invincible army will raise up. आमीन। आमीन। तो जब दुल्हन को पता चल जाए कि दुल्हन कौन है, उसको अपनी हैसियत, अपना मकाम पता चल जाए, तो वो एक इनविंसिबल आर्मी, एक ऐसी आर्मी जो पहले से जीती हुई है, वो बन जाती है जब उसको अपनी हैसियत की समझ आ जाए। And Satan will be हालेलुया। powerless in front of her. और फिर शैतान जो है वो आपके सामने जो है वो पावरलेस हो जाएगा, उसके अंदर कुव्वत ताकत बिल्कुल नहीं रहेगी। See, now the mercy of God multiplied in many. It multiplies. अब जो खुदा का रहम जो है वो अब मल्टीप्लाई होता जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है जिंदगियों के अंदर से। Brother Amen. Jabral is the mercy of God. Say, Brother Shajid and Brother Shamun, you are the mercy of God, and I am the mercy of God. Now, too भाई many mercy जबरान, of God. भाई शमाउन, भाई साजिद, भाई नेस्टर, हम क्या हैं? हम खुदा का रहम हैं। Say, Amen. we are the extension of the hand of the mercy of God. हम आज वो एक्सटेंशन बन चुके हैं जो खुदा का रहम गाह है। उसकी रहम आगे कैसे बढ़ेगा? वो हमारी जिंदगियों के जरिए से बढ़ेगा, ताकि हमारे वसीला से लोग बचाए जाएं। So you will ask me, Amen. is mercy over? तो आप मुझसे पूछें कि क्या रहम जो है खुदा का खत्म हो गया है? Mercy was multiplied in so many brethren, bride of Christ. Okay. Amen. 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 क्योंकि जो उसका रहम जो है आज दुल्हन के मेंबरान जो हैं उनके अंदर आज यीशु का रहम मौजूद है। Amen. See? Okay? So mercy is not yet over. Okay? जो We are रहम the है mercy वो of God खत्म on नहीं earth. हुआ बिल्कुल। Okay? आप हैं उसकी मर्सी। The sin was changed. Mercy from heaven, now mercy is on earth. कि वो मर्सी जो रहम जो है आसमान पर मौजूद था, लेकिन अब जमीन पर है। कौन सी जमीन? हम जो दुल्हन हैं, आज यीशु का रहम हमारी जिंदगियों में मौजूद है। See? Amen. The throne was in heaven, now the throne is on earth. Amen. वो तख्त तो पहले आसमान पर था, लेकिन आज तख्त कहां पर है? इस जमीन पर।
हमारी ज़िंदगियों में, हमारे बदन में उसका तख्त मौजूद है। Now, the tabernacle of God, is with men. और जो खुदा का जो ख़ैमा है वो कहाँ पर है? आदमियों के दरमियान है। Okay? Are you? आमीन, I'm very happy, brother. आमीन, आमीन। मैं इस बात के लिए बड़ा खुश हूँ। Yeah. Let's आमीन। bow our head, Brother Jabran. You pray. आइए हम अपने सर को झुकाएंगे और दुआ करते हैं। आमीन। प्यारे मसीहा तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदा तेरे कलाम के खूबसूरत वादों के लिए, खुदा खूबसूरत बातों के लिए बाप आसमानी। हमारे दिल नहायत शादमान और खुशी से भरे हैं कि क्या ही खुदावंद तेरे खूबसूरत वादे हैं। और खुदावंद तूने इस जमाना में, इस आखिरी वक्त में हमें जमीन के ऊपर खुदावंद रखा कि खुदाम प्यारे मसीहा हम तेरा टैबरनेकल बन सके, हमारे बदन जो है खुदा तेरे रहने की जगह बन सके। और खुदा जिस तरह से तूने भाई नेस्टर को इस्तेमाल किया, इन मुकाशफात को खोला है खुदा प्यारे मसीहा, हमारी जिंदगियों तक बातें पहुंची हैं कि किस तरह से खुदावंद ये जो बुक खुदावंद बंद थी, इसके ऊपर मोहरें लगी थी, ये खुली है और आज खुले रूप में किताब हमारे पास मौजूद है। और खुदावंद आज खुदाम तू दावा कर रहा है अपनी दुल्हन का कि खुदा तू जल्द से जल्द पोजेशन हमारा ले सके खुदावंद हमारे बदनों का। यीशु मसीह के नाम के वसीले से बाप आसमानी बख्श दे कि जबकि हम अब तेरी मर्सी सीट बन चुके हैं खुदावंद, तेरी रहम की जगह बख्श दे, हमारी जिंदगियों से खुदावंद हमेशा रहम हो सके, हमारी जिंदगियों से हमेशा माफी जारी हो सके, हमारी जिंदगी से लोग बाबरकत हो सके। क्योंकि खुदावंद हमारा बदन है, हमारे हाथ हैं, हमारे पाँव आज तू इस्तेमाल कर रहा है। खुदा प्यारे मसीहा तेरी बरकत चाहता हूँ अपने सब अजीजों के लिए जितने जमा है हमारे साथ, जितने ऑनलाइन इसको सुनेंगे, यीशु मसीह के नाम के वसीला से एक एक को तू छूना और खुदावंद तो अपने कलाम के वसीला से बाबरकत करना। तेरा शुक्र ब्रदर नेस्टर के साथ होना, उनकी फैमिली के साथ, उनकी सारी खिदमत में तो हमेशा अपने खादिम को संभाले रखना। तेरा शुक्र हो। ये सब कुछ खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। Amen. Amen. So आमीन। Lord bless you, everybody.